So till now we have राष्ट्रीयता की भावना यूरोपियन पीपल में. We have also gone through about the liberalism, how the revolutionaries help to attend their means how the liberalism expand their revolution. Okay, so these all part we have already discussed now about the Duke Metternich, Gypsy Mazzini. We have all about the revolutionaries we have all discussed. Okay, so now we are continuing about the age of revolution. So what is the age of revolution? 1830 to 1848. ठीक है. तो रिवोल्यूशन का जो एज है भाई वो कब तक था? 30 to 48. So during this period, a wide range of revolt was seen in the British, or you can say British, not simply Europe. Okay. So during 1830 to 1840, a wide range of revolution was seen in the Europe for the nationalist sentiment. Okay. तो यहाँ भाई बोल रहा है कि liberalism and nationalism came to be increasingly associated with the revolution in many regions of Europe, such as Italian, German state, provincial, and Ottoman Empire. Okay, okay ना. Okay. Okay. So these revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite, among whom professors, school teacher, clerk, and basically these are showing the composition of the liberals. Okay, so among the liberals there are variety of the middle class, professor, school teacher, clerk, and member of commercial middle class exist. लिबरल के अंदर ये सब क्लास आते थे. टीचर हो गया, क्लर्क हो गया, मेंबर ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लास, ये सब लिबरल के अंदर आते थे. ठीक है. So first of upheaval, or simply you can say the first revolt took place in the France in July 1830. फ्रांस में कब पहला क्रांति शुरू हुई? 1830. Okay. तो पहले हम लोग we have earlier discussed that the Bourbon dynasty. Bourbon dynasty, have you heard the name ना? Bourbon dynasty, that was what can we say, that was the restored to power after the 1815. Okay, कंजर्वेटिव रिजिम जो है तो उसमें बताया था बॉर्मन डायनेस्टी को फिर से पावर में आ गया. ठीक है. सो दैट वाज मींस ही वाज रिमूव्ड. ओके, तो उनको क्या कहते हैं, रिमूव किया गया विद द हेल्प ऑफ रिवॉल्यूशन. ओके, एंड द लुइस फिलिपे केम टू द एग्जिस्टेंस. ओके, तो लुइस फिलिपे बाद में उस गद्दी पे बैठ गया. एक पॉपुलर स्टेटमेंट है, वन ऑफ द पॉपुलर स्टेटमेंट गिवन बाय द लुइस फिलिपे दैट व्हेन फ्रांस sneezes the Metternich once remarked the rest of Europe catch cold. ये एक तरह का कि व्हेन फ्रांस sneezes the rest of Europe catch cold. ये मेटरनिक का स्टेटमेंट है. क्या बोला कि जब फ्रांस छींकता है मतलब ये नहीं कि they are means talking about the biological means process. They are talking about means what can you say, एक स्टेटमेंट उसको कि मतलब कि whenever means certain changes take place in the France, then whole Europe catches cold, or you can say that whole Europe came into that what can we say, that problem. कुछ भी वही फ्रांस में अगर हुआ तो क्या हुआ, पूरा यूरोप में हो जाता है. ठीक है. जैसे अभी हुआ ना कि कहीं अगर ये जो रिवोल्ट चल रहा है, मतलब वो अग्निपथ स्कीम के लिए चल रहा है, तो रिवोल्ट कहाँ से शुरू हुआ था? बिहार में शुरू हुआ, और पूरा लगभग इंडिया में फैल गया. इट हैज बीन स्प्रेड आउट टू ऑल ओवर द इंडिया. सेम इन द सेम वे दे आर सेइंग दैट व्हेन फ्रांस sneezes the whole Europe catch cold, or simply you can say that when something happen in the front is it will affect the whole Europe. तो क्लियर ना. सो यूरोप वाज भैया लुइस फिलिप बोला था Metternich. Louis Philippe was head when the conservative or what can we say Bourbon dynasty were overthrown. Then the Louis Philippe came into existence. Louis Philippe मतलब वहाँ पर बैठा, गद्दी पे बैठा. ठीक है. ये स्टेटमेंट है मेटरनिक का. When France नीचे, the rest of the Europe catch cold. Okay. अरे भैया पेज नंबर क्या है? I don't know actually. Okay, so I'm continuing. So Europe was the Greek war of independence. Greece had been a part of Ottoman Empire since the 15th century. तो ग्रीस क्या था भाई? ये ओटोमन एम्पायर का पार्ट कब था? सिंस 15th century. 15th century से पहले से ही
Greek was the part of Ottoman Empire. Okay, so Europe's part of the struggle for independence among the Greek, which became in 1821. कब से शुरू हुआ, मतलब कि ग्रीक बार इंडिपेंडेंस 1821 से शुरू हो गया, ठीक है. So nationalists in the Greek got support from the Greek living in exile and from many West European who had sympathized for ancient culture. This is one of the important points. What are they saying? That the nationalism feeling for the Greece came not only from the only particular country Greece, but also from the all over the world, or simply you can say the from the rest part of the Europe. Means simply they got sympathies or moral support फॉर द नेशनलिज्म. ओके, नेशनलिज्म का मोरल सपोर्ट उन लोग को ऐसा नहीं कि बस फ्रांस से मिला और अदर पार्ट ऑफ यूरोप से वहां से मिला. ओके, सो poet and artists lauded the Greece as the cradle of the European civilization and mobilized public opinion to support the struggle against the Muslim empire. तो लोग क्या हो भाई, poet जे artist थे, they are singing poem and they said that the European civilization or the basis of European civilization is the Greek. ग्रीक का यूरोप का जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, वो बेस उसका आधार क्या है, ग्रीक है. ओके, सो द इंग्लिश पोएट हुआ, एक पोएट का नाम यहाँ लिखा हुआ है, इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन, who organized many fund for the carrying out that you can say the romantic to carry out that national feeling that got died in 1824. Okay, एक है भाई last time was important treaty of Constantinople that was came in 1832 and recognized Greece as an independent nation. So in this way the Greece got independent. Okay, तो ग्रीस किस तरह से आजाद हुआ, समझ में आ गया ना. One point here is important, that what was the treaty of Constantinople. Okay, or from which treaty Greece became independent nation. So treaty of Constantinople of 1832. Clear? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है भैया? ये एक तरह का संधि है. whenever any country means what can you say that any country became independent or got independent, then a treaty is signed between the two nation or different nation. Okay, जब भी कोई देश आजाद होता है ना भाई, एक संधि साइन होता है. it is basically nothing but a type of agreement. ठीक है, ये एग्रीमेंट एक तरह का रहता है. जैसे कि when India got independent, then a treaty was signed between the India and British. जो पहले जो कंट्री रहता है ना, the country which has been subjugating the other country and the country which become a freedom, both sign a what can you say agreement that we call as treaty. Okay, यहाँ पर कुछ नहीं में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंट पे भी जब इंडिपेंडेंस होगा तो एग्रीमेंट हुआ था उसी पर. ठीक है, किस चीज? क्लियर? किस चीज का, वही तो कह रहे, दैट वाज द मींस गिविंग फ्रीडम टू द ग्रीस. ओके, किस चीज का समझ में आ गया? जो ग्रीस जो इंडिपेंडेंट नेशन बना, यही ट्रीटी के तहत बना. समझ में आ रहा है? कोई सबूत रहना चाहिए ना कि ग्रीस भाई इंडिपेंडेंट नेशन बना, वही ट्रीटी है ये. क्लियर? कैन आई मूव फॉरवर्ड? Okay, so now next point is that the romantic imagination and the national feeling. रोमांटिक ये मत समझ लेना भाई इश्क मोहब्बत है ये सब. ठीक है, रोमांटिक मींस आई एम सेइंग अबाउट द कल्चर, आई एम सेइंग अबाउट द ट्रेडिशन, आई एम सेइंग अबाउट द लैंग्वेज. सो beside of the force, or you can say that beside of the revolution, there was something that through which the what can you say through which the feeling of nationalism came. That was the culture. Okay, so culture and tradition play an important role in arising the nationalist feeling among the people. Okay, so cultural movement sought to develop a particular form of nationalist sentiment. I already discussed. Okay, so romantic artists and poets criticize the glorification and of region and style. ये क्या था भाई, बहुत सारे जो पोएट थे रोमांटिक पोएट simply you can say that the poet which write about the culture tradition of a country. Okay, so they criticize the glorification of religion and science. It's basically you can say that they are criticizing the science. उन लोगों को क्या भाई साइंस को criticize कर रहे थे, because they according to them means from the science they are losing their cultural dominance. Okay, so उनका संस्कृति क्या, उनका मानना था, they assume that from the science or their cultural or their tradition are going vanished. Okay, so they focused on emotion, mystical feeling, intuition. Okay, तो क्या हुआ भाई,
इमोशन पे फीलिंग करने लगा, मिस्टिकल फीलिंग में सिंपली कल्चरल फीलिंग करने लगा, ठीक है। एंड देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज through a common cultural past as the basis of the nation. So they are basically wanting the nation through a common past. यहाँ भी देखो एक टर्म आ गया कॉमन कल्चरल पास्ट. कॉमन कल्चरल पास्ट बेसिकली मीन्स से यू कैन से द कॉमन नेशनलिस्ट सेंटीमेंट. ओके, so the term common cultural past is a common national sentiment. Okay, clear. One of the example of a romantic poet given that the German philosopher John Gottfried Herder claimed that the true German culture was to be discovered among the common people. He was saying that the true German culture can only be came through the common people. Common people को क्या कहा जाता है वहाँ के लैंग्वेज में? Das Volk. Okay, so Das Volk is nothing but a common people. So according to him, it was the song, poetry, folk dance that the true spirit of the nation. नेशन को कहा जाता है वॉल्क्स के गिस्ट. ओके, popularized. So according to him, true nationalism feeling can be came through the folk song, folk dance. Okay, clear na? So he was engaged, means he was continuously engaged in collecting and recording this form of culture, folk culture. And according to him, the folk culture is essential to the project of the nation building. उनका मानना था कि जो folk culture है उसी से nation building आएगा. Okay, so these are basically the romantic feeling. यही सब romantic feeling है. Clear? उसके पिछला पॉइंट कहना क्या चाह रहा है भैया? कहना वही चल रहा कि he was basically the John Gottfried was basically focusing on the, what can we say, folk culture, folk poetry, folk dance as the means what can you say, as being the nationalist sentiment. नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को लाने के लिए उनका कहना था कि पोएट्री हुआ, डांस हुआ, फोल्क सॉन्ग है, पहले से रीति रिवाज का जो सॉन्ग है ये सब है एज द नेशनलिस्ट फीलिंग. ओके, उनका मानना था कि थ्रू दीज वेरियस एक्शन द नेशनलिस्ट सेंटीमेंट केम. क्लियर? Okay, so now we are moving forward about the language. Okay, means how the language play an important role in making the common sentiment, or you can say that simply how the language play a role for nationalist feeling, arising the nationalist feeling in the, what can we say, in the heart of common people. So the language play an important, or especially the vernacular language. Vernacular means mother tongue. Okay, so these mother language play an important role in developing the common, what can be common sentiment among different people. Okay, so the modern nationalism message to large audience who were the mostly illiterate. So the language, what can we say, folk fair were not just to recover ancient nationalist spirit but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate. So the person who don't know means who is basically illiterate, through the folk fair, what can we say, through the folk song or folk poetry, the message of nationalist spread. Okay, so this was especially in the case of Poland. Okay, which had been partitioned at the end of 18th century by the great power Russia, Prussia, and Austria. We have already discussed about the Poland, that when the Russia, Prussia, and Austria means, you have heard a treaty of Vienna, इसमें को डिस्कस किए थे. ये सब को क्या है, फ्रांस को जो पावर कंसाइज कर रहा था, they are means basically what can you say, surrounding the France so that they could not means spreaded. बताए थे ना, उसमें ही एक पार्ट था पोलैंड का जो था, उसमें ग्रेट पावर सच रसिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया, दे बेसिकली पार्सन. ओके, द पोलैंड को क्या हुआ, कंप्लीटली डिवाइड कर दिया. बट दो दे डिवाइडेड द पोलैंड बट दे कुडंट डिवाइड द कॉमन नेशनलिस्ट सेंटीमेंट और सिंपली द लैंग्वेज. ओके, सो Karol Kurpinski, for example, celebrated the national struggle through his operas and music, turning folk dance like the Polonaise and Mazurka. These are the name of folk dance, okay, into the nationalist symbol. क्या हुआ भाई? Even though Poland no longer existed as independent territory, national feeling were kept alive through music and language. समझ आ रहा? Though means great power such as the British, what can we say, Russia, Prussia, and Austria divided the Poland, but the common sentiment
became exist, they couldn't means what can you say? They couldn't kill that common sentiment. The common sentiment was alive through the music and language. Okay, so गाना हो गया, भाषा हो गया, इसके थ्रू क्या कॉमन सेंटिमेंट उनके अंदर रहा. ठीक है. सो द लैंग्वेज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट. ओके, एक और एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि व्हेन द रशिया occupied the Poland, so they imposed the Russian language. Okay, and they completely what can you say removed the Polish language. Okay, रसिया जब पोलैंड पर मतलब कि कब्जा किया तो क्या हुआ भाई, वो लोग रशियन लैंग्वेज पे जबरदस्ती फोर्सली इम्पोज कर दिया एंड रिमूव द पोलिश लैंग्वेज. ओके, सो इन पोलैंड use of Polish language become as the struggle for the nationalist for the nation building. Okay, और पोलैंड में क्या हुआ भाई, जो लोग मतलब कि हिंदी बोल पोलिश लैंग्वेज बोल रहा था तो उनको देखा जाता था कि दे आर स्ट्रगलिंग फॉर द इंडिपेंडेंस. उनको देखा जाता कि नेशनलिस्ट फीलिंग के लिए वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं. क्योंकि हिंदी पोलिश बोलना तो भाई जब ब्रिटिश रसिया जब कम्प्लीटली उस पर बैन कर दिया फिर भी हम पोलिश बोल रहे हैं, यानी इट इज अ डेयर टास्क ना, बहुत हिम्मत वाला टास्क है भाई. So Polish become as the national sentiment. Okay. So unmute yourself. Okay. Both of you mute. So now we are moving forward that how hunger, hardship and popular revolt. भैया Okay. Means how basically हाँ बोलिए एक डाउट है. बोलिए. हाँ, जैसे सपोज मान लीजिए कोई दो अलग अलग रीजन के रहने वाले लोग हैं, ठीक है. तो अभी सपोज मान लीजिए जैसे कहता अंग्रेज भारत आए थे, तो जब वो भारत आए थे तो उन लोगों को तो इंग्लिश आती थी और हम लोगों को मतलब अपनी हिंदी और जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो सब. तो फिर कम्युनिकेशन कैसे हुआ था? How they communicate through the means what can I say various people or the translator, because you know that one अच्छा person ठीक है. means बोलिए. अच्छा ठीक है, अगर मान लीजिए ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेट किया तो उस ट्रांसलेटर ने कहाँ से सीखा? ट्रांसलेशन में विद द हेल्प ऑफ अदर मींस अदर पर्सन से सीखा. और जिसने सिखाया उसने कहाँ से सीखा? फालतू क्वेश्चन है आप जो बोल रहे हैं. These अरे बताओ ना. all these language. Oh yeah, I am giving your answer. These all means the language came through what can you say continuously. ये ऐसा नहीं कि एक सीधा एक बार में कोई आ जाता है. ठीक है, आप जो कहना चाह रहे हो उसका रूट जानना चाह रहे हैं ना, you want to know the root. So these root means can't came at an instant. ये से जो आता है एक नहीं आ जाता, ये this came through slowly. It is a slow process, धीरे धीरे आता है. ठीक है, जैसे हम भी है, इधर क्या पहले कुछ नहीं आता था. I don't know means ABC of Bangla language, but when I become but when I used to with the help of means with the Bangla people, then I can understand and speak Bangla language. Okay, वरना रहते रहते भाई अब अपने आप सीख जाता है. Okay, you just mute yourself. I means asking you a question. Okay, so I am asking you a question that how a child attain the means the mother tongue. How a child means gain the knowledge of the mother tongue. बच्चा कैसे सीख जाता है भाई मदर टंग? उसको तो कोई सिखाता नहीं, ना ट्रांसलेटर में रहता है. बोलिए, जवाब दीजिए. कोई बच्चा रहता है वो कैसे सीख जाता है? बात करते हुए सुनकर. That similarly means that is the answer of your question. Okay, clear? हाँ. आ गया जवाब ना. Okay, so we are now means moving forward that how hunger and hardship came came as a symbol of or how the hunger hardship basically we can say that help in making the national sentiment. किस तरह से भूखमरी या hardship इससे national sentiment आया. Okay, so these are nothing but basically मतलब भैया hardship means हो गया भूखमरी, हो गया hardship means हो गया क्या आप कह सकते हैं उसमें, जब कष्ट भरा जीवन था उसी को कह सकते हैं hardship. Okay, क्लियर ना? तो भाई ये तो दिस इज द कॉमन मींस कॉमन स्टेटमेंट दैट व्हेनेवर वी फेस any what can we say any irregularity in our body, then our body will react. either that reaction may be positive or negative. जब भी भाई हमारे शरीर में चेंज होगा, बोल रहे हिंदी में ट्रांसलेट भी करे भाई, जब भी हमको भूख लगे या कुछ लगे तभी हमको we know the importance of that. ठीक है, और जब हमको भूख लगता है या फिर और कुछ क्या कह सकते हैं कष्ट आता है, then we react to something. भाई ये रिवोल्ट जो ये
अभी जो इंडिया में रिवोल्ट हो रहा है कब हो रहा है? उतना दिन से फ्रॉम द मेनी ईयर वी आर टॉलरेटिंग द बीजेपी। बीजेपी को क्या वो टॉलरेट कर रहा था, स्टूडेंट आर टॉलरेटिंग द बीजेपी। तो जब उनके भाई पेट पे आ गया बात अग्निपथ स्कीम का, जब उनके पेट पेट पे बात आ गया तो क्या हुआ? दे आर नाउ रिवोल्टिंग throughout the country and protest. So this is the similar context in case of the nationalist sentiment. Okay. So in 1830 there was a great economic hardship in the Europe. बहुत बड़ा भूखमरी आया 1830. Okay. In most countries there were a more seeker of job than the employment. So there are completely means what can you say unemployment. And if there is unemployment then they can't even get the food for one day. Okay. One part what can you say one time. एक time का ही भोजन उनको नसीब नहीं हो पा रहा था. Small producers in the town were often faced with stiff competition from the import of the British, where the machinization came. Okay. तो क्या होता है जो स्मॉल प्रोड्यूसर वगैरह था उनको भी दे आर आल्सो फेसिंग अ चैलेंज फ्रॉम द ब्रिटिश कंपनी। ब्रिटिश कंपनी का जो था क्योंकि वो लोग क्या था वहाँ मशीन इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था। सो दे आर नाउ मीन्स importing the product in a cheap price. Okay. So भाई कोई भी चीज नॉर्मल है whenever we get any something in a cheaper amount then why will afford more amount? तो क्या भाई कोई लोग उनका सामान खरीदता ही नहीं था क्योंकि ब्रिटिश का भाई सस्ता सस्ता आ गया था, समझा रहा? So now they are facing unemployment, they are facing the shortage of income. Okay. So textile production, one example, the textile production which carried out mainly home or small workshop was only partly mechanized. Okay. So they are also facing the problem. Europe, where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggle under the burden of feudal dues and obligation. So in the Europe, the aristocracy, or simply can say that uh, monarchy was still exist in the power, so they have to pay serfdom dues, they have to pay feudal dues. Okay. तो उनको बहुत सारा भाई टैक्स देना पड़ता था. So they was under means tax with or कोई means they are not getting the benefit. Okay. So the rise of food price in a year of bad harvest led to widespread pauperism in the town and the country. So uh, in that year also there was means the weather condition was not good. Okay. उस समय क्या था भाई वेदर कंडीशन भी सही नहीं था, कह सकते हैं कि बारिश वगैरह नहीं हुआ था. ठीक है. सो ग्रेट शॉर्टेज ऑफ फूड केम. तो क्या हुआ भाई बहुत बड़ा शॉर्टेज आया फूड केम और एंड द वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री. तो क्या हुआ पूरे देश में कंगाली छा गया. पॉपुलिज्म मैंने क्या होता है कंगाली, सर में क्या कंगाली छा गया सिंपली द शॉर्टेज ऑफ द फूड. सो in the 1848 that was also 1 year food shortage and widespread unemployment brought the population of Paris out on the road. तो क्या हुआ भाई वो लोग क्या हुआ इतना फूड शॉर्टेज होगा तो क्या हुआ अंदर से अभी बोले कि जब भी हमको कोई दिक्कत होगा तो क्या होगा भाई कि हम लोग रिएक्ट करेंगे. सो दे केम इनटू द रोड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लुइस फिलिपे. लुइस फिलिपे के अगेंस्ट में क्या हुआ भाई प्रोटेस्ट करने लगा. सो सीइंग द प्रोटेस्ट लुइस फिलिपे फ्लीड. प्रोटेस्ट देखा भाई और न्यूज़पेपर पे क्या हुआ भाग गया वहां से. ओके. एंड नाउ अ नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड एज अ रिपब्लिक ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल अबव 18. जब लुइस फिलिपे भाग गया सो नेशनल असेंबली वाज सेट एंड दैट ऑल अबव 21 मींस कैपेबल ऑफ गिविंग वोट. तो उन लोग क्या हुआ भाई अबव 21 को क्या हुआ वोट मतलब देने लगा. उनको राइट मिल गया. दे हैव गिवन वेट दे हैव गिवन राइट टू वोट. ओके. हाँ पूछिए. हाँ हेलो भैया, ये हाँ कहते बोलो. हैं जो जो लोग कहते हैं लुइस फिलिप, मतलब ये जो अभी हुआ ये सब फ्रांस में हुआ था ना. तो लुइस फिलिप को तो मतलब 1830 में मतलब जुलाई में मतलब ओवरथ्रोन कर दिया था ना लुइस फिलिपे को ओवरथ्रो नहीं किया तो रिवॉल्यूशनराइज ने. लुइस फिलिपे नो लुइस फिलिपे टू द पावर हम पहले क्या बताए भैया आप शायद उस समय नहीं थे स्टार्टिंग में हम बताए हैं. लुइस फिलिपे क्या 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 ये पावर में आया जब उनको मतलब रिवोल्ट किया गया. ठीक है. आई थिंक वेट आई एम शोइंग यू. इसीलिए कहते टाइम से ज्वाइन करो. टाइम से ज्वाइन करेगा नहीं क्वेश्चन तो राज होगा. अरे नहा रहा था. नहा रहा था बुलशिट योर बात. कहाँ था जी. या है लुइस फिलिपे एट इट्स हेड इन 1850 यहाँ बताए थे कि इन द फ्रांस इन जुलाई 1830 में पहला रिवोल्ट आया. ठीक है.
इसमें बॉर्बन डायनेस्टी को जो 1815 के बाद हुआ था, जो किंग वेयर मतलब कि फिर से रीस्टैब्लिश हुआ था, तो उसको वापस वो भाग गया और लुइस फिलिपो को मतलब वहाँ गद्दी पर बैठा गया। ओके, लुइस फिलिपे एट इट्स हेड इंस्टॉल्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यहाँ लिखा हुआ है हु इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनली मोनार्की विद लुइस फिलिपे एट इट्स हेड। लुइस फिलिपे को हेड बना गया। समझ में आ रहा? 1830 में जो बॉर्बन डायनेस्टी पॉलिस था उसको फिर से भगा दिया गया और लुइस फिलिपे हेड था। अब लुइस फिलिपे को भागना पड़ा ड्यू टू द ग्रेट ऑफ पॉपुलिज्म एंड हंगर। हंगर अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या हुआ, लुइस फिलिपे को भागना पड़ा। समझ आ रहा? एक दिन बेचारा वो किसी को भगाया अच्छा, था, तो नाउ ही हैव टू फ्ली अवे। लुइस फिलिप क्या मतलब कोई रिवॉल्यूशनरी था? He was basically struggling for the independence too. Yeah, he was a अच्छा, revolutionary. Struggling for independence means what? Revolutionary, na? रिवॉल्यूशन, हाँ। Okay. So means in the exam, the question maybe came that what are the changes that came after the Louis Philippe? So what are the changes? Change number 1, National Assembly was set up. Change number 2, it granted the all adult male. You can यहाँ clear को समझ रहे हो कि adult male not female. Adult male above 21 get the suffrage, universal suffrage, or you can say that they get the right to vote. Okay, clear? Also national workshop to provide the employment were set up. National workshop भी किया गया था so that there must be employment. Clear ना? एक यहाँ रिपोर्ट दिया हुआ है कि 1845 में बीवर ऑफ सिलेसिया है। हाँ, या कौन ये सब राइट? दिया कौन मतलब क्या हुआ? सब पीपल एक साथ ज्वाइन होकर नेशनल असेंबली बनाया, उसका हेड कोई बनाया होगा, वो लोग किया। दिया कौन, ये कैसा सवाल है? समझ में आया कि नहीं आया? अरे नेशनलिज्म में कोई भी whenever any revolt came there means someone head ना, कोई भी रिवोल्ट होता है उसका कोई हेड तो करता है ना भाई। समझ में आ रहा? तो वो हेड मतलब कि जो वो हेड लोग वहां मिले और नाउ दे सेट अप द कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनल असेंबली। नाउ दे गिव द सफरेज टू डिफरेंट एडल्ट मेल अबव 21। समझ में आ रहा? दिया कौन ऐसा थोड़ा है कि मतलब कि पूरा जनता ही सब लोग बैठ जाएगा नेशनल असेंबली में, घुस जाएगा। उसका हर एक का क्या होता है, एवरी मीन्स हमारे कंट्री में क्या एमपी इज एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेनी पीपल। एक एमपी क्या है, लाखों लोग का मतलब रिप्रेजेंट करता है। समझ आ रहा? दिया कौन क्लियर हो गया? कभी कभी सवाल का नाम क्या था? क्या बोले? हेड जो होगा तो उसका कुछ नाम वगैरह होगा नहीं? सॉरी दैट इज नॉट गिवन इन द बुक। ऑल्सो मीन्स हम ऐसा कोई रिसर्च नहीं किया, जितना बुक में उतना ही हम बस बता रहे हैं आपको। ठीक है, क्लियर? ज्यादा अगर जानना है तो मीन्स यू कैन गो थ्रू योर नेट। ठीक है, सो एक दिया हुआ है केस स्टडी दिया हुआ द सिलिसिया विलेज। ओके, सिलेसियन विलेज यहाँ दिया हुआ है कि ऑन in the village there about the 18,000 inhabitants was used to live in on 4 June 2 p.m. a large cloud of people emerged from their home and marched into the pair of the mansion for the contractor demanding high wage। उन लोग क्या हुआ, ज़्यादा मजदूरी के लिए कॉन्ट्रैक्टर पे मार्च किया और इतना हुआ कि उनका क्या हुआ, फर्नीचर पेन ये सब को क्या हुआ, तोड़ दिया। अनदर ग्रुप ब्रोकन इनटू द स्टोर हाउस एंड प्लंडर्ड ऑफ इट्स सप्लाई क्लॉथ व्हिच दे वेयर टॉट टू श्रेड्स। क्या हुआ भाई, कुछ ग्रुप हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्टर के घर में घुस के उसका क्या हुआ, क्या कर सकते, सिंपली दे प्लंडर, लूट लिया। ठीक है, सब कुछ। नाउ द कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड विद हिज फैमिली टू अ नेबरिंग विलेज। कॉन्ट्रैक्टर क्या हुआ भाई, नेबरिंग विलेज में चला गया और विद इन 24 आवर ही अगेन केम बैक विद द मिलिट्री सपोर्ट। क्या हुआ, मिलिट्री का सपोर्ट लिया फिर से, तो क्या हुआ, वापस ही केम इनटू द पावर। ओके, यहाँ मतलब बेसिकली बताया गया कि किस तरह से लोगों में अंदर से मींस दे हाउ द पीपल हैव इंटरनली अ ग्रेट Vatican means hatred against the monarchy or against a certain people। okay, इतना कंगाली छा कि दोनों रिवोल्ट कर रहे हैं, इसमें ये बताया गया। ऑल्सो दे 11 बीवर्स वेयर शॉट। 11 बीवर्स को क्या हुआ भाई, जान चला गया। समझ आ रहा? जैसे बेसिकली केस स्टडी दिया गया सिलेस्टियन विलेज का, दैट हाउ मींस व्हाट वाज द मींस थ्रू दिस केस स्टडी दे आर डेमोंस्ट्रेटिंग द सिचुएशन ऑफ द इन दैट डेज। उस समय सिचुएशन कैसा था, इस तरह उसको डेमोंस्ट्रेट करने के लिए दिया गया। क्लियर? क्लियर ना? Okay, so the revolution of the liberal. Now we are moving toward the revolution of the liberal. So the educated middle class
means parallel to the revolt of the poor, unemployment and middle class, there was also a revolt in 1848 that was underway. Okay, so event of February in 1848 in France brought the abdication of the monarch and republic based on the universal made suffrage had been proclaimed. पहले बताएं कि abdication of the monarch in 1848 means after that a republic based universal male suffrage had been proclaimed. पहले बताएं कि रिपब्लिक की तरह means what can we say, पीपल को फर्स्ट टाइम द पीपल गॉट द राइट टू वोट. पहला टाइम था कि उनको क्या हुआ, वोट करने का अधिकार मिला. मीन्स बेसिकली दे गॉट द राइट टू चूज देयर लीडर. ओके, सो इन अदर पार्ट ऑफ द यूरोप where independent nation state did not yet exist such as Germany, Italy, Poland, Austria, Hungary empire, men and women of the liberal middle class combined their demand for constitutional and national unification. तो क्या हुआ, इस जो रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ यूरोप था जैसे कि जर्मनी हो गया, इटली हो गया, पोलैंड हो गया, ठीक है, उन लोग भी दे आर ऑल्सो डिमांडिंग अ नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, विद द नेशनल यूनिफिकेशन सो दैट द नेशन विल बी यूनाइट. ठीक है, वो लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए. ओके, सो दैट हमारा नेशन क्या हो सके, यूनाइट हो सके. दे ऑल्सो मीन्स लिबरलिज्म, किसके बारे में बात करें, लिबरलिज्म का. ओके, लिबरल्स के बारे में. सो लिबरल ऑल्सो टुक द एडवांटेज ऑफ द पीपल. बोलो क्या हो भाई, पीपल के अंदर जो ग्रेट अंदर जो असंतोष की भावना थी उसका वो फायदा उठाया. ओके, फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन. So they took the advantage of growing popular unrest to push their demand for the creation of the nation state on the parliament principle, constitution, freedom of press and freedom of association. So what was the demand of the liberal? Demand number 1, a constitution. Demand number 2, a freedom of press, and number 3 is freedom of association. So they are basically, in a nutshell you can say that they are basically demanding a democratic principle. Okay, such as constitution, freedom of press. You know ना, these are the part of the democratic principle. Democratic का ही principle का हिस्सा है ना भाई. Okay, clear ना. So in the German region, a large number of political associations whose members were middle class professional businessmen, prosperous artisans came together at the city of Frankfurt and decided to vote for German National Assembly. 18 May 1848, 831 elected representative march in festive procession to take their place in the Frankfurt. एक यहाँ दिया गया कि how in a German region the means जर्मन नेशनल असेंबली वाज सेटअप, किस तरह से जर्मन असेंबली सेटअप हुआ था. ओके, यहाँ दिया गया कि 831 मेंबर क्या हुआ, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में गया. ठीक है, दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय मोनार्की सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट. तो जर्मन में क्या हुआ था, एक कॉन्स्टिट्यूशन को वो लोग डिजाइन किया which is headed by a monarchy subject to the parliament. मीन्स वो जो कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया उसका हेड कौन था, राजा ही था, बट इट इज सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट. राजा किसके जिम्मेदार था, पार्लियामेंट का था. ओके, क्लियर ना. इसी में नेम दिया गया कि when the deputies offered crown to the term of to Frederick Wilhelm IV, the king of Prussia, he rejected it and joined other monarch proposed the elected assembly. तो ये सब मेजर कर रहा था. तो वही उस समय का राजा कौन था, फ्रेडरिक विलेहम IV. उसको कहा गया कि आप भाई आप संभालिए, बट यू मस्ट बी आंसरेबल टू द पार्लियामेंट. ठीक है, समझा रहा. तो राजा का पावर बेसिकली दे आर ट्राइंग टू मिनिमाइज द पावर ऑफ द मोनार्क ना. सो द विलेहम IV neglect that what can we say, neglect that डिमांड, देयर डिमांड. तो वो लोग जो डिमांड करते हैं उसका क्या हुआ, निगलेक्ट कर लिया और वो मतलब कि राजा बनने से इनकार कर दिया. और ही ज्वाइन विद अदर मोनार्की, वो अदर राजा से मिल गया एंड ओके एंड बिकेम स्ट्रॉन्गर. ओके, समझ में आ रहा. बेसिकली यहाँ ये बताया जा रहा है कि किस तरह से मतलब कि विलहेल्म IV को राजा का गद्दी दिया गया, बट वो नकार दिया बिकॉज हिज पावर इज बीइंग मिनिमाइज्ड. उनका पावर क्या हुआ, छोटा किया जा रहा था. ठीक है, तो नकार दिया और अदर मोनार्की के साथ मिल गया था टू मींस ताकि वो मोनार्की को बढ़ावा दे सके. समझ रहा भाई, किसी का पावर को कम किया जाएगा बेसिकली राजा का, तो चाहेगा कि हमारा पावर कम हो. क्लियर ना. So the parliament was dominated by the middle class who resisted the demand of the worker and artisan and consequently lost their support. तो मिडिल क्लास का
basically the parliament was headed by the middle class and who resisted the demand of worker and artisan and consequently lost their support. वो लोग क्या हुआ भाई, वो लोग पावर में आया तो जैसे ही पावर में आया he made up their mind, अपना माइंड चेंज हो गया. ओके, they basically distract from their own birds, वो अपना बर्ड से ही क्या हुआ, मुकर गया. Now he was not, they were not giving the, means what can we say, not giving power to worker artisan. So क्या हुआ भाई, उनको उन लोग को ही गद्दी गवाना पड़ा. So in the end troops were called in and assembly was forced to disband. क्या हुआ अंत में भैया, फोर्स को बुलाना पड़ा, वापस जैसा था वैसा ही हो गया. ओके, जैसा था वैसा मींस बेसिकली अगेन मोनार्कियल सिस्टम आई डेवलप. सो द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट टू वुमेन वाज, अब यहाँ आया क्या, तो क्लियर है ना, क्लियर है ना अपना. ओके, सो नाउ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट, और ये क्वेश्चन भी हमेशा लगभग आते रहता है कि द व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग दिस नेशनलिस्ट स्ट्रगल. ये नेशनलिज्म स्ट्रगल के टाइम में व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ वुमेन. सो द कंडीशन ऑफ वुमेन वाज नॉट सो गुड. ओके, although means men were demanding but they are neglecting the demand of women. men लोग तो रिवोल्ट कर रहा था but they are neglecting the women. women को वो दरकिनार कर रहा था. okay, so they also, women also formed their association, they also founded newspaper and taken part in the political meeting and demonstration. okay, उन लोग भी न्यूज़पेपर अपना बनाया for their rights. okay, so despite that they were denied the suffrage right during the election of the assembly. पहले हम लोग डिस्कस किया था ना कि how the person adult male above the 21 got the right to vote, but the women was neglected. okay, women को ये right नहीं दिया कि वोट देंगे, क्योंकि भाई women were seen as a, what can we say, as a lower people, or basically they have no knowledge about the politics. उन लोग को देखा जाता था कि भाई कि women को कोई knowledge नहीं है politics के बारे में, ये सब. okay, so when the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as observers. So जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट अभी डिस्कस किए थे कि जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट सेटअप हुआ तो वुमेन को क्या हुआ, बस मुख्य दर्शक के देखा, मतलब बनाया गया, बस वो लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कि हाँ क्या क्या हो रहा है. यू कैन सिंपली से दैट दे आर जस्ट ऑडियंस, वो बस ऑडियंस की तरह थे. दे हैव नो एनी, व्हाट कैन वी से, स्पेसिफिक रोल और स्पेसिफिक एग्जिस्टेंस इन दैट पार्लियामेंट. ओके, तो पार्लियामेंट में क्या हुआ, उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, बस देख रहे थे हाँ सब कुछ सही चल रहा है. समझ आ रहा, उनका कोई वैल्यू ऐसे कुछ था नहीं. क्लियर. तो कोई पूछेगा व्हाट वाज द मींस कंडीशन ऑफ द वुमेन, तो फर्स्ट पॉइंट यू कैन से दैट द कंडीशन ऑफ वुमेन वाज नॉट सो गुड व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज सेट अप. दे वर ओनली नहीं, उसके पहले बोलिएगा कि दे आल्सो फॉर्म मेनी ऑफ द एसोसिएशन, न्यूज़पेपर, फाउंडेड न्यूज़पेपर for their right. And number 3 बोल सकते हैं when the parliament, Frankfurt parliament was set up, they were seen means they were admitted only as observer. तो वो क्या, वो बस ऑब्जर्वर के रूप में मतलब उसको ग्रांट किया गया परमिशन. ओके, क्लियर. So conservative force were able to suppress liberal movement in 1848. They could not restore the old order. तो भाई अभी बताया था ना कि फिर से राजा गद्दी में आ गया. क्यों गद्दी बताए थे ना अभी, फिर से राजा गद्दी में आ गया. तो बट when the again conservative regime set up, they were not means they set up some new measure, और बात कैन से वो लोग क्या है, कुछ नया मेजर लाए कि तुम लोग समझ गए हैं कि there is a huge distraction among the people, there is a huge hatred among the people. उन लोग समझ गए कि भाई जनता में क्या है, बहुत गुस्सा है. so they came with new measure. उन लोग क्या, कुछ नया पॉलिसी लाए. what was the new policy? according to that the monarch were being to realize that the cycle of repression and repression could only be ended by granting concession to the liberalist nationalist revolution. तो लोग समझे कि भाई without giving the right to the liberal nationalist revolutionaries we can't remain existence, or we can't remain on the country. उनको वो लोग समझ गए कि जब तक हम लिबरली नेशनलिस्ट या अदर रिवोल्यूशनरी को उनका राइट नहीं देंगे तो हमको ये लोग चैन से जीने नहीं देगा. समझ में आ रहा है. So they grant many concessions, तो बहुत सारा छूट उन लोग को दिया. okay, so thus serfdom and bonded labor were abolished both in the Heisenberg domination in the Russia. उसी के तहत ये सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर, मैंने बंधुआ मजदूरी जो था या और ड्यूज जो था उन लोगों को क्या हुआ, एबोलिश कर दिया. नाउ द बॉन्डेड लेबर वाज एबोलिश्ड. ओके, so Habsburg ruler granted more autonomy to the Hungarian in 1860.
1867 ओके। सिमिलरली जो हैप्सबर्ग का जो रूलर था, ठीक है, कौन था भाई उतना तुमको उतना नहीं नेम नहीं दिया गया, बस दिया गया कि हैप्सबर्ग जो रूलर था उनको क्या हुआ, ज्यादा अधिकार, दे गिव मोर ऑटोनॉमी टू द कॉमन पीपल, और यू कैन से दैट लिबरल नेशनलिस्ट, और यू कैन इन द इनडायरेक्ट रूप यू कैन से दैट रिवॉल्यूशनरीज। तो क्या हो भाई, रिवॉल्यूशनरीज को भी कुछ कुछ राइट देने लगा। क्लियर क्लियर ना? So now we will move to the unification of the Germany. And title दिया हुआ कि Can the army be the architect of a nation? Or simply they are saying that means, can the army played a role to form a nation? है ना? इसमें बोला गया कि क्या आर्मी से भी हम मतलब कि नेशनलिस्ट फीलिंग आ सकता है? यू कैन से सिंपली दैट आर्मी भी कोई नेशन को बना सकता है, ठीक है। इसमें बताया गया कि हाउ द जर्मनी वाज यूनिफाइड। ओके, so nationalist sentiment were often mobilized by the conservatives for promoting state power and achieving political domination over Europe. तो nationalist sentiment क्या था भाई? Often they are mobilized by the conservatives for promoting state power. हमेशा they are means promoting the conservatives, or simply you can say that they are promoting the monarchy. Okay, so we have seen earlier that nationalist feeling were widespread among the middle class German, who in 1848 tried to unite the different regions of the German Confederation into nation state governed by the elected parliament. तो वही 1848 में they try to unite the Germany by the different they simply want to combine the German Confederation. Okay, but the combined force of the monarchy and the military supported by the large landowner called Junker of Prussia. Junker किसको कहा था? लैंड ऑन को, ठीक है, जो बड़ा बड़ा जो जमीन का मालिक रहता है उनको कहा जाता था जंकर ऑफ प्रूसिया। ओके, सो प्रूसिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन। तो जर्मनी में भाई एक पार्ट है प्रूसिया, प्रूसिया इज द पार्ट ऑफ जर्मनी। ओके, सो प्रूसिया टुक द लीडरशिप फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन। हाउ मींस हाउ द जर्मनी यूनाइटेड? इट्स चीफ मिनिस्टर ओटो वान बिस्मार्क, ये इंपॉर्टेंट नेम है, जितना जितना नेम बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा। 1 मार्क्स क्वेश्चन में हमेशा आते रहता कि हु वाज हेड ऑफ द नेशनल यूनिफिकेशन इन द जर्मनी, कौन था भाई? ओटो वॉन बिस्मार्क। सो ही वाज सीन एज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ प्रूसियन आर्मी। यहाँ पर बताया कि विद द हेल्प ऑफ प्रूसियन आर्मी ही basically united the Germany. Okay, so 3 bar were fought between the Austria, Denmark and France that ended in the Prussian victory. Ultimately, Prussia got independence. Okay, and the German became united, or Germany became united. Okay, so in January 1871, the Prussian king William I was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles. तो यूनाइट तो किया और वापस क्या हुआ, जो किंग था विलियम फर्स्ट, उसको क्या हुआ, हेड बनाया गया। ओके, एंड ही बट प्रोक्लेम्ड एज जर्मन इंपेयर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइलेस। ठीक है, यहाँ पर आपको लग रहा होगा भाई यहाँ तो फिर से किंग ही आ गया। यहाँ बात है, किंग का हम नहीं कर रहे हैं, हम ये मतलब कि डेमोक्रेटिक सिस्टम का नहीं बात कर रहे कि नेशनलिज्म मतलब ये नहीं समझना कि डेमोक्रेटिक सिस्टम है। नेशनलिज्म मींस बेसिकली यूनिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट रीजन। समझ रहा आ रहा है समझ में? हेलो, यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट रीजन का मतलब मींस डिफरेंट मींस अलग अलग रीजन। अभी बताया ना जर्मनी में एक पार्ट है प्रूसिया, और जर्मनी का अलग अलग डिफरेंट रीजन है, तो सब लोग क्या हुआ, एक साथ यूनाइट हो गया, एक साथ लाना ही नेशनलिज्म फीलिंग है। ठीक है, तो ये मतलब कि मिसकंसेप्शन नहीं रखना कि भाई कि नेशनलिज्म फीलिंग मतलब हुआ कि डेमोक्रेटिक फीलिंग। समझ आ रहा? वो तो एक एडिशनल चीज है कि वो डेमोक्रेटिक फीलिंग आया कि नहीं आया, बट यूनिफिकेशन मतलब हुआ कि हर एक मींस बहुत सारा कंट्री एक साथ मिल के, और द पर्सन हु शेयर द कॉमन सेंटीमेंट, कॉमन कल्चर, दैट बिकम यूनाइटेड। वाली बताएं कि सुना रहा ना, जो कॉमन कल्चर ये सब शेयर करते हैं, सब एक साथ मिल जाएंगे, उसी को नेशनलिज्म कहेंगे। ओके, क्लियर? हाँ क्लियर भैया। ना? ठीक, यहाँ दिया गया है कि इन द कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871, assembly comprising a prince of the German state, representative of army, Prussian minister, including the chief minister Otto von Bismarck, gathered at the hall of Mirror in the place of Versailles.
to proclaim the new German Empire headed by the Kaiser William I of Prussia. Head कौन बना? Kaiser William I, okay, जो कि प्रूसिया का राजा था. So he became the head of the German Empire. So in this way, Germany became united. So the nation building process in Germany had demonstrated the dominance of Prussian state. तो भाई यहाँ पर आप you can clearly visualize that how the Prussia became the important part, or you can say that how the Prussia became important for the unification of the Germany. यहाँ से आप समझ सकते हो कि प्रूसिया का कितना बड़ा important था for the unification of Germany. Okay, so the new state that came into existence, that modernized the currency, that modernized the banking system, legal and judicial system in the Germany. तो लोग क्या हुआ भाई, बैंकिंग सिस्टम को मॉडर्नाइज किया, करेंसी सिस्टम को मॉडर्नाइज किया. ओके, ऑल्सो द मेजर दे ऑल्सो मीन्स अडॉप्ट डिफरेंट पॉलिसी. ओके, बहुत सारा मीन्स नया नया चीज है दैट बिकम द व्हाट कैन वी से मॉडल फॉर रेस्ट ऑफ द जर्मनी. जो चेंज वो प्रूसिया में ला रहा था वो क्या हुआ, पूरे जर्मनी में लागू किया गया. और यू कैन से दैट एक मॉडल बन गया कि हाँ ये दिस इज अ गुड. ओके, पहले बैंक था भैया? पहले बैंक मतलब कि इन द फॉर्म क्या कर सकते, शॉर्ट फॉर्म में कुछ था, ऐसा कुछ बैंक नहीं था. ओके, वही तो हम करें, मीन्स बैंक का कंसेप्ट भी एक तरह से कर सकते कि यहाँ से ही आ रहा था. दे आर मॉडर्नाइजिंग द बैंकिंग सिस्टम. बैंकिंग सिस्टम मीन्स ये नहीं हो कि बैंक ही हुआ जिस तरह से अभी बैंक है. बैंकिंग सिस्टम मीन्स यू कैन से दैट दे आर व्हाट कैन वी से मॉडर्नाइजिंग द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री. ना इकोनॉमिक जो फ्रेमवर्क है कंट्री का उसको मॉडर्नाइज कर रहा था. क्लियर? बैंकिंग मतलब ये नहीं हो कि ये जो आईसीआई बैंक और सिटी बैंक जो इधर है, वो बैंकिंग यू कैन से दैट इकोनॉमिक जो फ्रेमवर्क है उसको डेवलप किया. ठीक है ना? हाँ. यहाँ एक फिगर देख सकते हैं किस तरह से भाई सब लोग आर्मी वगैरह ये किंग सब लोग एक साथ जमा हुए भाई फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी. ठीक है. So these are the means also means map is given about the Prussia before 1866 in the violet. 1866 से पहले प्रूसिया किस तरह से डिवाइडेड था. कंक्योर्ड प्रूसिया इन ऑस्ट्रिया प्रूसिया बार 1866 के में ये सब पार्ट ऐड हुआ. ओके, ज्वाइंड विद प्रूसिया टू फॉर्म जर्मन कन्फेडरेशन 1867. ये सब जो स्टेट्स थे ग्रीन डॉट मीन्स जो स्टेट में है वो लोग ज्वाइन हुआ प्रूसिया के साथ फॉर द जर्मन कन्फेडरेशन. क्लियर ना? So now let us move the how Italy unified. जर्मन का यूनिफिकेशन देख लिया, अब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली. सो इटली टू हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन. उसमें भी क्या था भाई, बहुत सारा फ्रेगमेंट था, बहुत सारा मीन्स डिवाइड मीन्स बेसिकली दे आर डिवाइडेड इनटू मीन्स मेनी small territory. Okay, so multinational Habsburg Empire was means exist during the middle of the 19th century. Italy was divided into 7 states. इटली क्या था भाई, 7 स्टेट में डिवाइड था. ओनली वन सार्डिनिया पिडमोंट वाज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसली हाउस. केवल एक ही जो था जो कि इटली प्रिंस जो इटालियन प्रिंसली हाउस था, और बेसिकली कैन से दैट वाज रूल्ड बाय द इटालियन एम्पायर. एक ही जो था इटली एम्पायर का द्वारा रूल किया जा रहा था. ओके, so even the Italian language had not acquired the one common form and still had many regional and local variation. यहाँ तक कि वहाँ का जो लैंग्वेज भी कॉमन नहीं था. सुना रहा, इवन द इटालियन लैंग्वेज नॉट अक्वायर्ड अ कॉमन फॉर्म. तो जो 7 स्टेट जो डिफरेंट था उसमें इटली में ऐसा नहीं था कि सब जगह बोला ही जा रहा था. ठीक है, तो इतना वेरिएशन था. देयर आर वाइड रेंज ऑफ लोकल वेरिएशन. सो during the 1830s, Gypsy Mazzini sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic. तो क्या हुआ भाई, इसका जिम्मा किसने उठाया, हेड कौन था, जिप्सी मेजनी. इन 1830s he developed a different program for the unification of the Italy. He formed a secret society. पहले ही हम लोग बताए थे, यंग इटली बनाया था secret society for the unification of the Italy, but that failed. Okay, यंग इटली फॉर द डिसमेंटेशन ऑफ हिज गोल. वो अपना गोल को अचीव करने के लिए क्या हुआ, यंग इटली भी बनाया था, लेकिन मतलब he is basically trying to unite the Italy. Okay, so the failure of revolutionary uprising both in 1831 and 1848 means that
Mantelna fell on Sardinia, Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel to unify the Italian state through the war won. तो अब भाई the whole opportunity means what can we say, the whole responsibility came to the King Victor Emmanuel II to unify the Italian states. तो ये जिम्मा किसने फिर बाद में उठाया? विक्टर इमानुएल सेकेंड. ओके. So, in the eyes of the ruling elites of this region, a unified Italy offered them possibility of economic development and political domination. उन लोग को मानना था कि भाई when the Italy will be unified, we will get what can we say, economic development will become in the country and also political dominance came. उनको मानना था कि अगर if we unite, then क्या होगा? Economic development आएगा. Okay. So the chief minister Cavour led the movement to unify the region in Italy. Another revolutionary nor a democrat. एक chief minister Cavour है, ठीक है, वो भी मूवमेंट को ज्वाइन किया टू यूनिफाई द इटली. सो ही आल्सो मींस स्पीक फ्रेंच मच बेटर देन द इटालियन. वो भी मतलब कि समझ सकते जो उसका हेड था, मींस द पर्सन हु वांट टू ज्वाइन द टू यूनाइट द इटली, ही इवन कांट स्पीक इटालियन लैंग्वेज. मतलब वो भी अच्छा तरह से इटली लैंग्वेज नहीं बोल सकता था. इस तरह समझ सकते कितना मुश्किल था यूनिफिकेशन ऑफ इटली का. लैंग्वेज भी मतलब कि कॉमन नहीं था. ओके. So French much better than Italian. Through a tactful diplomatic alliance with France, injured by the Cavour, Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Austrian force in 1859. क्या हुआ भाई? So the combined effort of these people, they succeed in defeating the Austrian force in 1859. तो Austrian force को क्या हुआ? हराने में कामयाब रहा. Apart from that, a large number of armed volunteers under the leadership of Gypsy Garibaldi joined the fray in 1860. They marched to the South Italy and Kingdom of the Two Sicilies had succeeded in bringing support for local peasants in order to drive out the Spanish ruler. क्या हुआ भाई? टू किंगडम ऑफ टू सिसिलीज को ज्वाइन कौन किया? जिप्सी गैरिबाल्डी. ओके. So in 1861, Victor Emmanuel was proclaimed the king of United Italy. 1861, finally the unification of Italy. What can we say? Finally, the Italy will be unified in 1861 under the who was the head? Who declared the head? Victor Emmanuel II. Okay. So एक यहाँ दिया गया कि even the common people don't have a clear ideology or don't have clear thinking about the nationalism. तो वहाँ का इतना बुरा हाल था कि वहाँ की कॉमन पीपल को भी मतलब कि नहीं पता था. एक टर्म दिया गया है ला इटालिया, ला टालिया. ओके. ला टालिया मीन्स क्या होता है? ला टालिया मीन्स होता है इटली. ठीक है, इसी से बड़ा है मतलब इटली आया. जो कॉमन पीपल थे वो लोग को मतलब इटली ये क्या है? बेसिकली इट इज डेवलपिंग मीन्स इट इज व्हाट कैन यू से, इट इज डिनोटिंग द मीन्स वर्ड ऑफ द कंट्री. ये क्या है? ला टालिया मीन्स हुआ इटली, ये बेसिकली कंट्री. ला टालिया मतलब कि एक देश है. ठीक है, लेकिन जो कॉमन पीपल थे उनका उन लोग को लग रहा था कि ये विक्टर इमानुएल की पत्नी का नाम था. समझ सकते कितना मतलब कि कम नॉलेज था उन लोग को. ठीक है, कहना क्या चाह रहे समझ रहे हैं? यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं कि मींस दे हैव नॉट मच मोर सेंटीमेंट अबाउट मींस दे हैव नॉट मच मोर नॉलेज अबाउट द नेशनलिस्ट फीलिंग. उन लोग को लग रहा था कि सेंटिमेंट का मतलब भैया, सेंटीमेंट मींस वो इंटरनल फीलिंग, मनोभावना. ठीक है. हाँ तो समझ रहे हो इटली भाई, इटली पे हाथ है क्या? एक यूनाइटेड नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन कॉमन पीपल बेचारा समझ रहे थे कि ये जो वहाँ की राजा उसका महारानी का नाम है. समझ रहे थे कितना स्मॉल नॉलेज था. ओके. सो नाउ लास्ट पार्ट इज द हाउ द व्हाट वाज द केस ऑफ द ब्रिटेन. ब्रिटेन बताया कि इन द ब्रिटेन द अच्छा हेलो भैया, हाँ यहाँ स्ट्रेंज का है लिखा हुआ है, स्ट्रेंज के सब ब्रिटेन. strange means हुआ means that was not the common case, that means that we have seen earlier. तो अभी तक हम देखें उस तरह से ब्रिटेन क्या हुआ? यूनाइट नहीं हुआ. ठीक है, बता रहे पूरा समझिए किस मींस हेयर लड़ा वगैरह नहीं. ना इसमें लड़ा वगैरह सब कुछ खास नहीं गया था. ठीक है, इसमें थोड़ा डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी दे ब्रिटेन वाज ज्वाइन. ओके, डिप्लोमेटिक की तरह से मतलब इसको किया गया. ओके, पूरा समझिए इसका समझ में आ जाएगा किस तरह से स्ट्रेंज था. ओके. सो द ब्रिटिश फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहीवल और रिवॉल्यूशन. तो ब्रिटिश का ऐसा नहीं था कि मिस ब्रिटिश वाज नॉट बेसिकली यूनाइटेड थ्रू अ रिवॉल्यूशन.
इट वाज यूनाइटेड थ्रू अ लॉन्ग प्रोसेस। क्या हुआ भाई, लॉन्ग प्रोसेस से यूनाइट हुआ। There was no British nation prior to the 18th century. The primary identities of the people who inhabited the British easily were ethnic ones, such as English, Wales, और Irish. So primary identities of people क्या था, ethnic था। ethnic means क्या हुआ, their definition is given, the related to the common racial, tribal or cultural origin background that a community identified with or claim। ethnic means क्या हुआ, that related to common culture, common tribal, okay, or you can say simply the common feeling of that, okay। So the means here the identities of people was ethnic, okay। Also, but the English nation steadily grow in the wealth, importance and power. It was able to extend its influence over the nation of the Iceland। तो क्या हुआ भाई, जो ब्रिटिश था और ब्रिटेन था, they are basically means increasing their influence, extending their influence over the different nation of the Iceland। तो उसके आसपास जो कंट्री था और यू कैन से द अलग अलग जो राष्ट्र था, उसको क्या हुआ भाई, उसमें वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने लगा, ओके। The English Parliament, which had seized power from the monarchy in 1688 at the end of protracted conflict, was the instrument through which a nation state with English as a center came to the force। तो इंग्लिश का जो था कि वो 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट बना था, ओके। So the Act of Union 1707 between the England and Scotland that resulted in the formation of the United Kingdom of Great Britain। तो यूनाइटेड किंगडम जो भी सुनते हैं हम लोग, यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन, स्टार्टिंग में बस दो कंट्री था, कौन था, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। 1707 में, 1707 में क्या हुआ, दो कंट्री कंबाइन हो गया थ्रू डिप्लोमेटिक माइंडसेट। डिप्लोमेटिक माइंडसेट से क्या हुआ भाई, तो दोनों कंबाइन हो गया, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड इन 1707 एंड द ग्रेट ब्रिटेन केम, ओके। सो फर्दर इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इन्फ्लुएंस ऑन द स्कॉटलैंड। तो जब कंबाइन हो गया तो क्या हुआ, इंग्लिश पीपल adopt variety of measure to what can we say, to impose the English culture। इंग्लिश कल्चर को बढ़ावा देने के लिए वो क्या हुआ, बहुत सारा मेजर अडॉप्ट किए। ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन दैट द स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सिमेट्रिकली सप्रेस्ड। तो ब्रिटिश आइडेंटिटी को अपना बढ़ाना चाह रहा है, यानी क्या, बेसिकली दे वांट टू सप्रेस द सेंटिमेंट और कल्चर ऑफ द स्कॉटिश पीपल। स्कॉटिश पीपल का कल्चर को दबाना वो लोग चाह रहे थे, ओके। So Scottish Highlanders were forbidden to speak the Gaelic language or wear the national dress। तो स्कॉटिश पीपल जो था, उन लोग को अपना जो ड्रेस था, कल्चरल जो ड्रेस था, वो पहनने का अलाउड नहीं था। दे इवन कांट स्पीक देयर ओन लैंग्वेज, अपना लैंग्वेज भी मतलब बोलने का उसको याद नहीं दिया गया था, ठीक है। ऑल्सो सिमिलरली आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट। आयरलैंड के साथ भी वही हुआ है ना। सो आयरलैंड क्या है, आयरलैंड का कंपोजिशन समझते हैं, इट इज अ कंट्री इन विच means which is divided on the basis of what can we say, on the basis of they are basically divided as a Catholic and Protestant। So England helped the Protestant of Ireland to establish the dominance over the largely Catholic country। तो क्या हुआ भाई, इंग्लैंड जो था वो हेल्प किया किसको, कैथोलिक को किया, ठीक है। कैथोलिक मीन्स हुआ जो चर्च वगैरह में बिलीव करता है, ठीक है। चर्च वगैरह में जो बिलीव करता है वो उसको कैथोलिक कहते हैं। प्रोटेस्टेंट जो है उसमें बिलीव नहीं करता, मीन्स सर्टेन सा क्राइटेरिया है, ठीक है। कैथोलिक चर्च सुने ना, तो वो क्या, किसको सपोर्ट किया, इंग्लैंड कैथोलिक को, कैथोलिक पीपल को सपोर्ट किया, ओके। सो आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट बाय द वोल्फ टोनी एंड यूनाइटेड आयरिशमैन इन 1798 आयरलैंड वाज फोर्सibly इनकॉर्पोरेटेड विद यूनाइटेड किंगडम इन 1801। तो क्या हुआ भाई, फाइनली आयरलैंड भी यूनाइटेड ग्रेट ब्रिटेन का में शामिल हो गया। समझ आ रहा है, ये मतलब ऐसा नहीं कि दिस इज नॉट अ प्रीवियस केस, ऐसा नहीं था कि दे वाज अ कंट्री वाज फॉर्म, अ कंट्री वाज नॉट फॉर्मिंग, अ यूनियन ऑफ मेनी कंट्री वाज केम। यहाँ क्या हो रहा भाई, ऐसा नहीं कि एक नया नया देश बन रहा, कंट्री तो वही था, आयरलैंड ही था, कंट्री तो वही था, स्कॉटलैंड ही था, बट दे अगेन यूनाइटेड, मींस मेनी कंट्री यूनाइटेड एंड फॉर्म द ग्रेट ब्रिटेन, ओके। तो इस तरह से आयरलैंड ही बेचारा इंग्लैंड के जाल में फंस गया, ओके, क्लियर ना। सो द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश का फ्लैग, ब्रिटिश फ्लैग का नाम याद रखिएगा, यूनियन जैक, नेशनल एंथम, गॉड सेव आवर नोबल किंगडम, इंग्लिश लैंग्वेज become promoted and the older national survived only a subordinate partner in the union। क्या हुआ भाई, प्योर ब्रिटिश कल्चर को दे इम्पोज किया, ओके। समझा रहा ना। यहाँ देख सकते हैं कि ये पहले मतलब कि जो
गैरिबाल्डी किस तरह से ये इटली दे रहा है किसको, राजा को दे रहा है, समझ में आ रहा? ये फिगर से क्या बेसिकली कहना चाह रहा? इटली का हम लोग समझे ना यूनिफिकेशन में, गैरिबाल्डी का सुने थे, तो गैरिबाल्डी बेसिकली काम कौन किया बेचारा, ये गैरिबाल्डी किया, और वो क्या हुआ, महाराजा को सौंप रहा है इटली, दे रहा है जूता में मौजा पहना रहा है उन लोग को इटली की तरह, इटली का मौजा है। बेसिकली ये दिखाना चाह रहा है कि किस तरह से गैरिबाल्डी सारा मेहनत किया और राजा को मतलब कि बेसिकली ही गिवन द पावर। ओके, सो फाइनली द लास्ट पार्ट इज हाउ नेशन इज विजुअलाइज। तो नेशन को विजुअलाइज कैसे किया गया? सो इट इज वेरी मीन्स व्हाट कैन से, इट इज वेरी इजी और कॉमन टू विजुअलाइज अ particular place, particular tree और particular बिल्डिंग। एक बिल्डिंग को, एक पेड़ को, या एक क्या कर सकते हैं, एक कॉमन थिंग को विजुअलाइज करना इजी है, बट टू विजुअलाइज अ नेशन इज नॉट अ इजी टास्क। ओके, सो देयर आर मेनी आर्टिस्ट, there were many artists who try to means what can we say, try to create the paintings and different what can we say, different what can we say, different flag and blah blah things to create a common feeling। कॉमन फीलिंग बनाने के लिए क्या हुआ, आर्टिस्ट ये लोग में जुटे हुए थे कि किस तरह से हम बनाएं। ओके, टू पर्सनिफाई द नेशन, तो नेशन को पर्सनिफाई करने के लिए। सो इन अदर वर्ड दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इट अ पर्सन। तो कंट्री को किस तरह से रिप्रेजेंट किया एज अ पर्सन। फीमेल फॉर्म was chosen to personify the nation did not stand for a particular woman in real life। तो क्या हुआ, फीमेल को चूज किया एज अ पर्सन। इससे होता है ना, भारत में क्या है, भारत माता है ना भाई। दिस इज ऑल्सो द मीन्स व्हाट कैन वी से, द पर्सनिफाइंग ऑफ नेशन। भारत माता क्या है, कोई फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, हमारा कंट्री किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से दे took the female as a representative of the common feeling of the nation। Okay, so that is the female become the allegory of the nation। female क्या बन गया, allegory of the nation बन गया। allegory means हुआ when abstract idea is expressed through a person। जब कोई आइडिया को हम पर्सन के थ्रू विजुअलाइज करते हैं उसको कहते हैं allegory। ठीक है, सिंपली इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पार्टिकुलर थिंग, उसी को allegory कहते हैं। ओके, तो यहाँ एक एग्जांपल दिया होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, फीमेल एलेगोरी पोर्ट्रे द आइडिया सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। जो फीमेल एलेगोरी था उसको क्या हुआ, लिबर्टी, जस्टिस, ये सब को रिप्रेजेंट करती थी। सुनना रहा, लिबर्टी आर द रेड कैप, ब्रोकन चेन, व्हाइल जस्टिस इज जनरली ब्लाइंड फ्लोंटेड वुमेन। तो लिबर्टी को किस तरह से किया गया, लाल लाल जो कैप पहनता था उसको लिबर्टी की तरह विजुअलाइज किया गया, या ब्रोकन चेन उसको लिबर्टी की तरह विजुअलाइज किया। जस्टिस, ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन जो रहती थी उसको क्या जस्टिस की तरह दिया गया। तो हमारे कोर्ट में है ना, ब्रिटिश कल्चर ही तो है भाई, नहीं एक पट्टी बांध के रहती है मतलब महिला, एज ए जस्टिस, सिंबल ऑफ जस्टिस नहीं रहता है भाई, मूवी में नहीं देखे हैं? हाँ हाँ, हाथ में तराजू लेके हाँ पता है। हाँ, हाथ में तराजू लेके, तो वो भी क्या है, दैट इज पर्सनिफाइंग समथिंग। ठीक है, इस तरह से कानून अंधा पर्सनिफाई होता कर है। देते हो, वो अंधा होता है। ठीक, इन फ्रांस सी बाज क्रिश्चियन मारिया, पॉपुलर क्रिश्चियन नेम। फ्रांस में क्या नाम था, बस नाम वगैरह याद रखना कि फ्रांस में कौन था वो, जैसे हमारे भारत माता है ना, वहाँ का नाम था क्या, क्रिस्टियन मारियाने। दैट वाज अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम व्हिच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ द पीपल नेशन। पीपल नेशन को अंडरलाइन कौन करता, क्रिश्चियन मारियाने। ओके, सी आल्सो वॉर रेड कैप, ट्राई कलर एंड कॉर्पोरेट। यहाँ देख सकते हैं, यही है ना भाई, हाँ जर्मनी, ये तो जर्मेनिया है, ये नहीं है। ठीक है, जर्मेनिया कहाँ, जर्मेनिया कब देखते हैं, जर्मेनिया बिकम द लग्जरी ऑफ द जर्मन नेशन। जर्मेनिया बियर क्राउन ऑफ ओक लीव्स एज अ जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म। ये देखिए जर्मेनिया है, जर्मनी का मतलब क्या है, व्हाट कैन वी से, एलोगोरी है, जर्मनी का एलोगोरी है। देख सकते हैं कि वुमेन को इट इज मींस रिप्रेजेंटेड थ्रू ऑफ वुमेन। देख सकते हैं किस तरह से झंडा ली हुई है। दिस मींस विजुअलाइज द कंसेप्ट ऑफ अ नेशन एंड दिस इज अ ओक लीव्स। वहाँ का जो ओक का जो पत्ता रहता है ना, उसको एज अ हीरोइज्म की तरह देखा जाता है। ठीक है, व्हाट कैन वी से, एज अ हीरो की तरह देखा जाता है। ठीक है, इस तरह से द नेशनल फीलिंग केम। ओके, so these measure the means visualization of nation was came into existence। इस तरह से नेशन को विजुअलाइज किया जा रहा है। दिया एट्रीब्यूट्स, ये सब याद रखिएगा एग्जामिनेशन पर्पज से, इजी इंपॉर्टेंट। जैसे ब्रोकन चैन मींस बीइंग फ्रीड,
ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, सिंबल ऑफ जर्मनी, क्राउन ऑफ ओक लीव्स, अभी बताएं हेरोइज्म, स्वार्ड जो तलवार लिया हुआ है उसका मतलब क्या हुआ, रेडीनेस टू फाइट, मैंने हम लड़ने के लिए हमेशा तैयार है। ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, विलिंगनेस टू मेक पीस, स्वॉर्ड में क्या है, स्वॉर्ड के चारों ओर देखिए यहाँ पर, स्वॉर्ड के चारों ओर है ना ये ओलिव पत्ता है, मतलब कि क्या हम लोग शांति भी बनाए रखने के लिए तैयार है। रेज ऑफ ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म, rays of rising sun as a beginning of new era, ठीक है। through these measure the nationalist feeling came and through these we visualize the nation, ठीक है। ये भी देखिए एक नेशन को विजुअलाइज करके दिया गया है किस तरह से, मतलब कि when they are sent फॉलन जर्मेनिया, फॉलन जर्मेनिया मतलब क्या है कि वो जो अभी जो हम औरत को ये देखे थे ये क्या गिर गए मीन्स बेसिकली व्हाट देयर नेशनली सेंटीमेंट बिकम सेटर्ड, उस तरह से इसको विजुअलाइज किया गया, ठीक है। सो दिस वाज मींस यही चैप्टर था भाई, इसके थ्रू कुछ भी डाउट है देन यू मे आस्क योर डाउट। आई एम स्टॉपिंग माय स्क्रिप्ट, अब बोला जा।